Huh. What I'm trying to say is some people will think that, oh, if I complete graduation and after I get job, I'll be happy. And once I reach this position, I'll be happy. So if they think that way, they'll not actually feel happy when they get what they want. Maybe that is very momentary. So if they're enjoying the journey, then that is very good. If suppose I want to complete graduation, if I'm enjoying the journey of studying, that is very important. I have to enjoy each and every part of my journey than waiting for the destination to be happy. इसमें क्या होता है, I understood your point, because generally what happens that if you look at life at a broader picture, like we always encourage, our children to first complete fifth standard, then complete, 12th standard, finish your graduation, then go for higher studies. Okay, you'll get a job, you'll get a, beautiful wife, or, a very handsome husband, you'll get a good job, you'll get credit card, got it. So we are trying to, and there is a possibility that the children can do well in these areas, but ultimately when they are sitting, when they are trying to do something, and when they try to match this outer encouragement with internal purpose, they will find a mismatch. Getting it? And they will feel cheated also. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे माँ बाप को कहते हैं कि आपने कहा था कि 12th कर लो तो लाइफ आसान हो जाएगी, ग्रेजुएशन कर लो तो लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है, और जॉब मिल जाएगी तो लाइफ आसान हो जाएगी. तो ऐसे बच्चों की लाइफ कभी आसान होती नहीं है. एंड वी आर very much responsible for this kind of social, what do you say, the kind of social unrest. Pressure also, I can say. Yeah. So they become pressurized. Of course, they become pressurized, and that leads somewhere else, maybe suicide and frustration, and then they are disrespecting the society. They are disrespecting their parents. Getting it? सो जनरली होता क्या है कि अगर एक 35-40 साल का व्यक्ति है, 45 साल का व्यक्ति है, जब अपने जीवन को देखता है कि उसने जीवन में क्या किया है, सो ही विल फील चीटेड. माय मॉम चीटेड ऑन मी, माय फादर चीटेड मी, माय फादर मिसगाइडेड मी, माय सिस्टर, मिसगाइडेड मी, ब्रदर मिसगाइडेड मी, द होल सोसाइटी मिसगाइडेड मी. He will feel that I was not supposed to do all these things. I was supposed to do something else. I agree that I was socially responsible to finish my graduation. But why my parents, my society is always expecting me to do something which I'm not prepared to do? Getting it? छोटे छोटे गोल्स के बीच में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है अध्यात्म का, जो जो आत्मा का जो गोल है, वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाता है. एंड देन एक बच्चा 25-26 साल का, 30 साल का अपने आप को बहुत ज्यादा चीटेड फील करता है. And then that child revolts. The child revolts against the society, against the parents, and against all the norms and the cultural values. So though it's all connected to education system, but इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमें अपने बच्चों को कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि उनका जो स्पिरिचुअल गोल है वो भी उनकी एजुकेशन के साथ कनेक्टेड हो. समाज में ग्रेजुएशन करना जरूरी है, 12वीं पास करना भी जरूरी है, स्टडी करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें उनको रोबोटिक नहीं बनाना है. आजकल कर क्या रहे हैं, बच्चों को रोबोट बना रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू प्रोग्राम देम, वी आर नॉट ट्राइंग टू नर्चर देम. गेटिंग इट? हम बच्चों को प्रोग्राम कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है. वो प्रोग्रामिंग होता है क्या है, वो आगे जाके मिसमैच हो जाती है, फिर वो आगे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. Okay. If a person wants to be happy, like how a person can be happy? In few lines, can you please highlight? In order to be happy, in order to be content, and in order to do something in life, we need to find out our spiritual goal. In this world, इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज का एक मकसद है, हर चीज का एक उद्देश्य है जो परमात्मा ने बनाया है. ठीक है? उस उद्देश्य को हमें समझने की जरूरत है, उस उद्देश्य को हमें महसूस करने की जरूरत है, उस उद्देश्य को हमें इस तरीके से नर्चर करने की जरूरत है जिसके द्वारा या जिसके आधार पर हम अपने जीवन को एक दिशा दे सकें. उस टैलेंट को या उस मकसद को हम समाज में किसी तरीके से इस्तेमाल में ला सकें ताकि समाज का भला हो सके और आपका खुद का जीवन भी एक संतुष्टि तरीके से जिया जा सके. उसी से असली खुशी मिलती है. उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें मिथ्या हैं, मिसगाइडिंग है, मिसलीडिंग है और प्रॉब्लमेटिक. मैं यही कहना चाहूंगा.
What, according to you, is a spiritual goal? How to get to know what is our spiritual goal? Spiritual goal can be anything. Let me tell you. I want to become a thinker. I want to become a religious thinker. I want to become Adhyatmic Guru. That's my goal. Got it? You want to become a mathematician. That's your goal. Your daughter wants to become a doctor. My son wants to become a pilot. Got it? Uh, my friends, kids want to become engineer or maybe scientist or entrepreneur or businessman. These are the professions which are available in the society as of now, and there are a lot of other professions also. Any goal, anything a child feels that I can do something in this particular field, and that voice, that message, or that indication comes from within, is this spiritual goal. Got it? Now, how to realize it? There are certain things, let me tell you. आध्यात्मिक गोल को या आध्यात्मिक उद्देश्य को समझने के लिए कुछ चीज आपको अपने अंदर या किसी भी व्यक्ति को पहचानने की जरूरत है। पहली चीज, जब आप अपने आध्यात्मिक गोल को पहचानोगे तो आपको सबसे ज्यादा खुशी महसूस होगी। आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति, द पर्सन हु हैज फाउंड हिज स्पिरिचुअल गोल विल बी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, when that person has found his spiritual goal, he will be very easy while doing that particular thing. आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, ठीक है, और उसी बच्चे को अगर आप बोलोगे कि भाई आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, लॉजिकल या कोई पजल सॉल्व करके दिखाओ, सो दैट चाइल्ड वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट पजल। बट व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग, दैट चाइल्ड विल बी वेरी इजी, he will be very easy, it will be very simple task for him to draw a painting. Got it? So पेंटिंग बनाते वक्त उस बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, वो नेचुरली इसमें बहुत अच्छा होगा। तीसरी चीज, उस काम को करते वक्त आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी क्योंकि आप नेचुरली इसको बना रहे हो, दैट्स योर इनबिल्ट टैलेंट, ठीक है। और इसमें अगला पॉइंट ये हो सकता है कि कोई भी ऐसा उद्देश्य जो आपका आत्मिक उद्देश्य है, आपका जो आध्यात्मिक उद्देश्य है, उसको समाज में स्वीकृति, उसको एक्सेप्टेंस मिलनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को गलत काम करते वक्त भी अच्छा लगता है, तो हम उसको स्पिरिचुअल गोल नहीं कह सकते। आपका आध्यात्मिक उद्देश्य जो है, आपका जो आध्यात्मिक गोल है, उसको समाज में एक्सेप्टेंस, एक स्वीकृति मिलनी भी बहुत जरूरी है। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है, जो आपका आध्यात्मिक उद्देश्य है, जो आपका स्पिरिचुअल गोल है, वो गोल ऐसा होना चाहिए या आपको उस गोल को इस तरीके से नर्चर करना चाहिए या इस तरीके से उसको डेवलप करना चाहिए कि समाज में उस उद्देश्य की वजह से या आपके टैलेंट की वजह से एक बदलाव आ सके और आपकी दाल रोटी भी इस पर चल सके। ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं, when you have found your spiritual goal, you will feel that spark within you. So that's why people become crazy when they found their their spiritual goal. उसको हम एक नॉर्मल भाषा में पैशन भी कह सकते हैं, हालांकि आध्यात्मिक भाषा में पैशन का नाम नहीं लूंगा मैं, वो एक जुनून या फिर एक जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है, ठीक है। बट ये है कि उसको नॉर्मल भाषा में हम पैशन भी कह सकते हैं। सो व्हेन यू फाइंड योर स्पिरिचुअल गोल इज अ रिफाइंड स्टेट ऑफ पैशन, बीइंग पैशनेट। तो होता क्या है कि ये कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपके साथ होती हैं, दैट मीन्स यू हैव फाउंड योर पैशन, यू हैव फाउंड योर स्पिरिचुअल।